Hello students, this is a very different time, difficult time. We are going to teach you online. So experience, even yours first experience. Now I am going to start first lecture. It is about tenses. Tenses are very important part of our syllabus. It's basic, but we cannot skip it. My students are from Punjabi medium, Hindi medium, and of course English medium. So I will speak in Punjabi also, in Hindi also, and in English also. ठीक है, ताकि आपको सभी को समझ आ जाए. So many students know this topic, even from 4th or 5th class, but you never put your attention proper. You didn't give proper attention to tenses. You think this is nothing to learn about it, but it's important. It's a basic. If you want to speak English, tenses are very necessary. If you want to write something properly, then again tenses are very important. बहुत ज़रूरी है टेंसेस. अगर ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छा लिखना चाहते हो, बहुत अच्छा बोलना चाहते हो, विदाउट टेंसेस यू कैनॉट डू एनीथिंग. बहुत वारी ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, डिग्रीज कर ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਵਨ, बट दे कैनॉट राइट ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼. ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ. टाइम देना और अच्छी तरह देना. ठीक है, एक बार ध्यान ਨਾਲ ਇਹ देख लो. बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, कॉम्प्लिकेट नहीं मैं ਕੀਤਾ. बहुत अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश करूँगी और ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਮਿਸ ਕਲਾਸਿਸ, ਵੀ ਮਿਸ ਆਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. Really we miss you bete, but it's a difficult time. So let us start our first tenses. Tenses are of 3 forms: present, past and future. Then again present tense is divided into 4 parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, then again past tense, it is again divided into same forms, but I have written that indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Then future tense, it's again divided into 4 parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖੋ. indefinite full, continuous full, perfect. Sometimes we put dot, means we write half of the word. Sometimes, not every time. Try to write full because this is English. Okay, then same forms: present tense same form 4 forms, past tense same 4 forms and future tense same 4 forms. Now let us start the tenses. After forms, let us start the tenses. Now how to understand tenses? There are 2 ways. 4 forms. Present has 4 forms: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. We can start like this. Start with present indefinite, start with present continuous, present perfect, past present perfect continuous and past same. Okay, or we can, if we want to learn easily, बच्चे बहुत जल्दी easy method जल्दी learn करते हैं. It's students' tendency to learn very fast if we use like this. If we start like this: present indefinite, then past indefinite, then future indefinite. Now it shows the difference.
you will differentiate between present indefinite and past indefinite and future indefinite. That's why it's easy to learn. I have written it. It's easy to learn rules. If you want to differentiate between them, write on your copy. Write on your copy. I am starting this one. This portion I am going to start. Not this one. But if you want to learn easily, after the lecture, you can pick the rules, write them, present definite, past definite, future indefinite. Then again, present continuous, past continuous, future continuous. Then you will learn easily. I think so. Now, let us start the first way. Now it's present indefinite. Rules are, in Punjabi, छोटे क्लासेस तुसी पढ़िया होएगा, ਜਾਂਦਾ है ना? This one, this is how we can recognize. Present definite rules are S or ES with first form of the verb. With first form. I have written this V1. Actually, there is no need to write like that. Write full with first form of the verb. कितना टाइम लेगी अपना, बहुत इतना छोटा, बट ट्राई टू राइट लाइक दिस. ठीक, आई हैव रिटन V1 क्योंकि स्टूडेंट लिखते हैं ना, इजी लगता है उनको, तो मैंने लिख दिया. बट राइट फुल. नाउ कम टू देन अगेन एस और ES विद सिंगुलर. और सिंगुलर होते क्या है? ही, शी, इट. एस और ES विद प्लूरल, पर मैंने कटिंग किया, मीन्स नहीं लगता है इसके साथ. वी नेवर यूज एस और ES विद प्लूरल. प्लूरल क्या होते हैं वो भी मैंने लिख दिया, क्लियर कर दिया. यू, वी, दे एंड आई. ओके. देन कम टू नेगेटिव. नेगेटिव क्या लगता है? डू नॉट एंड डज नॉट. विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके. देन डज नॉट कहाँ लगता है और डू नॉट कहाँ लगता है? डज नॉट वी यूज विद सिंगुलर, डू नॉट वी यूज विद प्लूरल. नाउ कम टू इंटेरोगेटिव. Do, does before the subject. Then write properly before the subject. Okay. Now with the first form of the verb. Now let us take the simple sentence. Very simple sentence. It's I go to school. I write here. I go to school. It's A. It's A. A means affirmative. Means पंजाबी में बोलते हैं हाँ वाचक. यहाँ पे हाँ होती है, मीन्स पॉजिटिव होता है. देन नेगेटिव. आई डू नॉट गो टू स्कूल. नेगेटिव. देन डू आई गो टू स्कूल? इंटेरोगेटिव. आई लिखा है मैंने, ए लिखा है अफर्मेटिव, नेगेटिव लिखा है, इंटेरोगेटिव लिखा है. ये तो मैंने लिया था फर्स्ट वन आई के साथ. अब हम देखते हैं ही के साथ क्या लगता है. ही गोज टू स्कूल. ठीक है, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है. ये क्या था? प्लूरल है. यहाँ पे हमने देखा था पहले, कहाँ पे देखा था? यहाँ पे. ही, शीट सिंगुलर है, प्लूरल क्या है? यू भी दिया है. ये आपने पहले याद करने बेटे. अब याद कर लोगे, उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा क्या प्लूरल होते हैं, क्या सिंगुलर होते हैं. ठीक है. देन ही गोज टू स्कूल. ही सिंगुलर था, गोज टू स्कूल. ही डज नॉट गो टू स्कूल एंड डज ही गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आपने जरूर पुट करना है. ये नहीं है क्वेश्चन मार्क छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसे करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा. ठीक है. दिस वाज अवर फर्स्ट टेंस. नाउ कम टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ दिस कॉन्टिन्यूअस मीन्स काम चल रहा है. एक्सप्रेशन एक्शन. आई हैव रिटन एक्सप्रेशन एक्शन. काम हो रहा है मीन्स कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. रूल्स क्या है इसके? इज, आर, एम विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. ठीक है. नाउ इज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ.
आर किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ। एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? नेगेटिव बनेगा इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. ओके, नाउ कम टू इंटेरोगेटिव. इज आर एम बिफोर द सब्जेक्ट. देखो मैंने लिखा है बिफोर द सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्किप करते हैं ये. दे डोंट वांट टू राइट लाइक दैट. मैथमेटिकल काम करना चाहते हो आप मोबाइल जैसे लिखना चाहते हो, शॉर्ट टर्म्स में लिखना चाहते हो. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश. राइटफुल टाइम नहीं लगता इतना. सिर्फ अपना एक हैबिट बनानी पड़ती है कि लिखना है मैंने, शॉर्ट टर्म नहीं यूज़ करने की. यहाँ यूज़ करनी है यूज़ करो, इंग्लिश में नहीं करो. तो एग्जाम्पल लेते हैं हम. सिंपल एग्जाम्पल, माई मदर इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स. ठीक है, तो ए लिखा है मैंने, अफर्मेटिव. मैं बताऊंगी आपको इन द लास्ट ऑफ द वीडियो कि एग्ज़ाम में आना कैसे है, हाउ द क्वेश्चन विल अकर इन एग्जाम. ठीक है, वो हम लास्ट में बात करेंगे. मदर इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, देन मदर इज़ नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, इज़ माई मदर वॉशिंग द क्लोथ्स. ठीक है, तो कैसे था? मैंने इंटेरोगेटिव में क्या लिखा है पहले? इज़ आर एम बिफोर द सब्जेक्ट. तो आ गया ना बिफोर द सब्जेक्ट. इज माई मदर वॉशिंग द क्लोथ्स. ये मैंने सिंगुलर सब लिया था. सिंगुलर, माई मदर सिंगुलर है ना. मदर्स होते तो फिर प्लूरल हो जाता ना. बॉयज़, ये मैंने प्लूरल लिया स्पेशली कि दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि सिंगुलर के साथ इज लगता है, बॉयज़ के साथ आर लगेगा, प्लूरल है. बॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क, बॉयज़ आर नॉट डूइंग देयर वर्क, आर बॉयज़ डूइंग देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क. देखते जाना कैसे. ऐसे यहाँ पे फुल स्टॉप जरूर लगेगा. बॉयज आर नॉट डूइंग देयर वर्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव जरूर लगेगा. इंटेरोगेटिव नहीं छोड़ना है. इंटेरोगेटिव छोड़ोगे तो फिर नंबर कट जाएगा. ठीक है, ये जो टेंस था ना बेटे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये सिंपलेस्ट टेंस, सिंपलेस्ट है. सभी बच्चों को आ जाता है, छोटे छोटे बच्चों को आ जाता है. लेकिन गलती किस में करते हो? जो हमने पहले टेंस किया है, प्रेजेंट डेफिनेट किया ना, उसमें गलती करते हो. इसमें गलती होने के चांसेस होते ही नहीं है, उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं. एस और यस लगता है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं कैसे लगता है. ठीक है, नाउ कम टू अ थर्ड टेंस. इट्स प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट. ठीक है, देन एक्शन दैट जस्ट हैज बीन कंप्लीट. कोई एक्शन शुरू हुआ था, वो कंप्लीट हो गया है. रूल्स क्या है इसके? इसमें क्या क्या लगता है? हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैज विथ सिंगुलर, हैव विथ प्लूरल. Actually, the students who come from English classes, English schools, they always think we are perfect. हमें तो सभी कुछ आता है. तो प्रॉब्लम क्या होते हैं? उनको आते हैं टेंसेस, आते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कौन से टेंस में क्या लगना है, किसकी क्या पहचान है, किस में रूल्स क्या लगने हैं. तो दे यूज जस्ट ट्रिक्स कि इसमें हो गया तो ठीक है, कई बार ठीक भी हो जाता है. कई बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है पर उनको टेंसेस बिल्कुल नहीं आते. टेंसेस नहीं आते उनको. अगर आप टेंसेस को एक बार कर लो, रिवीजन कर लो, सेंटेंसेस चेंज करके देख लो, तो कभी हो ही नहीं सकता आपको टेंसेस जो है भूल जाए. भूलने वाली चीज़ है भी नहीं ये, आपको हमेशा काम आएगी. आप जॉब तक चले जाओ, आपको टेंस नहीं आते होंगे तो आप यू विल फील एम्बैरेस्ड व्हेन समबडी कोई कहेगा कि आप ये लिख दो, तो यू विल फील एम्बैरेस्ड कि नहीं मेरे को लिखना नहीं आता. लिखना क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको टेंसेस नहीं आते. ठीक है, ना कम टू द पॉइंट अगेन. हैज़ विद सिंगुलर, हैव विद प्लूरल. ना कम टू नेगेटिव. हैज़ नॉट, देन हैव नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखो मैंने भी लिखा है पूरा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये नहीं लिखा, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया बेटे, ऐसे नहीं किया. थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं किया. बच्चे तो फॉर्म भी नहीं लिखते, भी लिख देते, ऐसे भी लिख देते. मैं ऐसे नहीं लिख रही, मैंने पूरा लिखा है. नाउ कम टू इंटेरोगेटिव. हैज़ हैव बिफोर द सब्जेक्ट. हैज़ हैव बिफोर द सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव है. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. बहुत सिंपल टेंस है ये वाला, और इसके जो आगे आएगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ये वाला बहुत सिंपल है. कॉन्टिन्यूस भी बहुत सिंपल था. अगर बच्चे को ये आ गया तो एक तो फिर आपको जो नहीं आता होता वो यू शुड रिपीट दैट टेंस अगेन एंड अगेन. व्हेन यू विल रिपीट द थिंग्स you will be going to be perfect. Then for example, he has
finished his homework. Okay, then he has not finished his homework. Not लगा दिया हमने. Okay, then has he finished his homework? हमने क्या लिखा था? हमने यहाँ पे क्या लिखा था? Has have before the subject. लगा दिया हमने has have before the subject. क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ठीक है. Then come to the second one. 2 एग्जाम्पल्स ले रही हूँ मैं. We have painted a picture. We have not painted a picture. We have not painted a picture. Have we painted a picture? Question mark. Is it clear? Present perfect है. इसमें हैज हैव लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है. सिंगुलर के साथ हैज हैव, सिंगुलर के साथ हैज हैव, प्लूरल के साथ नेगेटिव में हैज नॉट हैव नॉट, थर्ड फॉर्म लगती है. देन हैज हैव बिफोर द सब्जेक्ट. ये 2 मैंने एग्जाम्पल ले लिया है. तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है. देन कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट continuous. Present perfect continuous. This is the last tense of present. ठीक है. ये इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ लगती है. वैसे आपको आप अच्छी तरह फॉलो करोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा. ठीक है. रूल्स में क्या लगता है? हैज़ बीन. ये रूल्स आपको सभी करवाते हैं बेटे. फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th 8th 6th क्लासेस 5th क्लासेस अच्छे से करवाते हैं टीचर. लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो तो आपको टेंसेस की हमेशा आप यही बोलते हो हमें तो करवाया नहीं है, हमें तो आता नहीं है. तो आएगा कैसे? जब आप रिपीट करोगे. मैं करवा रही हूँ, आप रिपीट करो अगेन एंड अगेन. देखो, बार बार देखो, उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करो, रूल्स देखने की कोशिश करो. जैसे मैंने पहले बोला था, आप ऐसे करो, प्रेजेंट डेफिनेट का पहले इंडेफिनेट लिख लो, फिर पास्ट का लिख लो, फिर फ्यूचर का लिख लो. उसके साथ क्या होगा? आपको समझ आने लगेगी, आपको जल्दी समझ आ जाएगी. फिर कॉन्टिन्यूस के तीनों लिख लो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस. फिर परफेक्ट लिखना है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. वो आप तीनों करोगे ना, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस में क्या लगता है, प्रेजेंट में क्या लगता है, पास्ट में क्या लगता है, फ्यूचर में क्या लगता है. चलो अगेन कम टू द पॉइंट. रूल्स में हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. इसमें एक चीज़ और लगती है. क्या लगता है? सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर. तो सिंस फॉर यूज़ कहाँ होते? लगते तो हैं, पर यूज़ कहाँ होते हैं वो भी हमने देखना है. ठीक है. सिंस इज यूज्ड व्हेन ए पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन. आपको पता है कि ये टाइम दिया हुआ है, वहाँ पे सिंस लगना है. फॉर ए यूज व्हेन ए पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन. पीरियड तो दिया है हमें, ये तो कहा है कि 2 घंटे 4 घंटे, पर कौन से 2 घंटे, मॉर्निंग के, इवनिंग के, ये क्लियर नहीं है. ठीक है. वहाँ पे क्या लगना है? फॉर. तो जैसे मैंने और क्लियर कर दिया, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1995. क्लियर है ना. देन फॉर कहाँ लगता है? फॉर 2 आवर्स. 2 आवर्स कौन से हैं? मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं, हमें नहीं पता. फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये तो क्लियर ही हो गया इससे. ठीक है. अब हम लेते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लो आप. फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है. देखो, हैज़ बिन भी लगा है, फर्स्ट फॉर्म भी लगी है, आईएनजी भी लगा है, सिंस भी लगा है. सिंस क्योंकि मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग. ठीक है. अगर 2 आवर्स होता फिर हमने क्या लगा देना था? 4. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. नॉट कहाँ लगा है? बिटवीन. हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क. देन नेक्स्ट, Parveen has been living in this house since 1980. Parveen has not been living in this house since 1980. Then has before the subject. ये सब्जेक्ट हो गया ना. परवीन नाम है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट को पंजाबी में क्या कहते हैं? कर्ता, काम करने वाला. जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. ठीक है. हैज़ परवीन been living in this house since 1980. ठीक है. काम करने वाला करता है ना वो. ठीक है. तो नेक्स्ट सेंटेंस है,
लेट इट बी क्लियर। राम हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। ये मैंने 4 की एग्जाम्पल ली, ये तो एक एग्जाम्पल से कर देना था, 4 की एग्जाम्पल लिए। राम हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। राम हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। देन हैज़ राम बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके साथ हमारा कौन सा टेंस कंप्लीट हुआ? प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट का क्या क्या कंप्लीट हुआ? प्रेजेंट डेफिनेट, present continuous and present perfect, then present perfect continuous. Now we are going to start second one. कितने होते हैं? present past perfect होता है ना, then we will call it second one. उसकी कितनी फॉर्म थी? indefinite, continuous. just wait जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं past tense, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उसकी भी सेम थी। ठीक है, वो था प्रेजेंट, ये है पास्ट। ओके, नाउ कम टू द पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ये क्या शो करता है? ये एक्सप्रेस द पास्ट एक्शन, जो एक्शन हुआ है पास्ट में हुआ है। रूल्स, सब्जेक्ट विथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अकेला ही टेंस है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगता है। इजी है, इट्स वेरी वेरी इजी। जैसे प्रेजेंट डेफ में मैंने पहले बोल दिया था, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। उसमें ईएस लगता है, बच्चे भूल जाते हैं सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। वैसे वो भी डिफिकल्ट नहीं है, बट उसमें भूल जाते हैं बच्चे। इसमें कोई भूलने वाली बात ही नहीं है। जैसे सब्जेक्ट विद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव सेकेंड फॉर्म। ये डिड नॉट क्या लगा? ये डिड क्या है? ये डिड क्या है? डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म किसकी? डू की। ठीक है, नेगेटिव। सो डिड नॉट लग गया। जब डिड नॉट लग गया तो जो सेकेंड फॉर्म है वो चेंज हो जानी है फर्स्ट फॉर्म में। मैंने पूरा लिखा है, सेकेंड फॉर्म चेंजेस इनटू फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो इसका इंटेरोगेटिव भी ऐसे बनेगा। उसमें हम क्या करेंगे? डिड बिफोर द सब्जेक्ट, एंड फिर क्या? वही सेकेंड फॉर्म चेंजेस इनटू फर्स्ट फॉर्म, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म नहीं लगनी है, ये गलती नहीं करनी है। सेकेंड फॉर्म ऐसे नहीं रहनी है कि फर्स्ट में लग गई तो नेगेटिव में भी लगेगी, इंटेरोगेटिव में भी लगेगी। नहीं, ऐसे नहीं। फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू स्कूल। ए क्या होता है? ये याद रखने वाली चीज़ें। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मैंने पहले बोला था क्या होता है? हाँ वाचक, यस। ठीक है, नेगेटिव नो। ठीक है, ना वाचक इसको पंजाबी में बोलते। यू शुड बी रूटेड इन पंजाबी और हिंदी। इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाबी मीडियम, यू शुड बी रूटेड इन पंजाबी। इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, डोंट फॉरगेट योर हिंदी। देन अगर आप अपनी मदर लैंग्वेज को टच करके रहोगे तो इंग्लिश सीखनी। इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर हम अपनी मातृभाषा ही छोड़ देंगे और कहेंगे हमने इंग्लिश ही अकेली सीखनी है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सीखना हमको दूसरी लैंग्वेज है, बट आप वेरी मच रूटेड इन पंजाबी और हिंदी, वट एवर योर लैंग्वेज इज। जैसे बहुत बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं या पंजाबी मीडियम से आते हैं, सोच लेते हैं कि हमें तो इंग्लिश आनी नहीं है। ऐसे नहीं है। कोई भी चीज़ सीखनी हो तो थोड़ा लेबर लगती है, थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो सब कुछ जाता है। तो बच्चे तो सीख लेते हैं, बड़े आराम से सीख लेते हैं। बट इफ़ यू विल नॉट पुट एनी एफर्ट एंड आपको हो कि मैंने पूरा ऐसे लिख लेना है, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता। देन कम टू द पॉइंट। क्या था? सेकेंड फॉर्म लिखनी थी ना, ही वेंट टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड नॉट लग गया तो यहाँ पे हमने गो कर दिया। डिड लग गया, यहाँ पे हमने गो कर दिया। डिड ही गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैं पहले बताती आ रही हूँ, जरूर लगाना है, इसको छोड़ना नहीं है। देन अगेन नेक्स्ट है, द बॉयज प्लेड द मैच वेरी वेल। ठीक है, फुल स्टॉप लगाया मैंने। द बॉयज डिड नॉट लग गया ना, नेगेटिव हो गया। देन आएगा प्ले। ईडी नहीं लगनी है साथ में, ईडी ये फॉर्म नहीं लगनी है। प्ले द मैच वेरी वेल। देन डिड द बॉयज प्ले द मैच वेरी वेल? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहीं भी नहीं छोड़ना है। देन कम टू द नेक्स्ट टेंस। कम टू द नेक्स्ट टेंस, इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन आई थिंक इट्स विजिबल, दिख रहा है आपको सभी को। देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन कम टू अ रूल्स। अगेन दिस टेंस इज वेरी वेरी सिंपल टेंस। प्रेजेंट का भी मैंने बोला था बहुत सिंपल टेंस है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 4th, 5th, 6th, 7th याद कर लेते हैं। वो कॉन्टिन्यूअस किसी को नहीं भूलता।
वेरी सिंपल। कॉन्टिन्यूस मीन्स काम चल रहा है, क्योंकि ये पास्ट है तो काम पास्ट की बात हो रही है। रूल्स क्या लगेंगे? वॉज, वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing। ना वॉज कहाँ लगता है? जैसे पिछले में, लेट मी राइट हियर, पिछले में क्या लगा था? इज, डार्क नहीं कर रही मैं, इज आर एम लगा था, ठीक है ना, इज आर एम लगा था। उसमें भी हमने देखा था इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। आर किसके साथ लगता है? एम। यहाँ भी ऐसे ही है, वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। एंड वर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। नेगेटिव कैसे होता है? वॉज नॉट, वर नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing। ठीक है, क्लियर। देन कम टू नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा वॉज नॉट, वर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? वॉज, वर, बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, बिफोर द सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। ये इतना भी बोलना बच्चे समझते हैं, मतलब बोलना ही नहीं है बिफोर द सब्जेक्ट। स्पीक इट बिफोर द सब्जेक्ट। देन फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, सिंपल सी एग्जाम्पल। मैंने, मेरे ख्याल में वो प्रेजेंट वाली ले ली है मैंने। माई मदर वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। माई मदर वॉज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। वॉज माई मदर वॉशिंग द क्लोथ्स? नो। फर्स्ट ए मीन्स एफर्मेटिव, एन नेगेटिव, ठीक है, नावाचक हो गया, आई इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वाला, ठीक है। देन स्टूडेंट्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग। स्टूडेंट्स कितने थे? ज़्यादा थे ना, तो वर लग गया, सिंगिंग अ सॉन्ग। स्टूडेंट्स वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वर स्टूडेंट्स सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ओके, दिस इज अवर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे मैंने बताया है, दोनों अपने लिखो, रफ कॉपी पे लिखो, रफ कॉपी पे लिख के उसका डिफ्रेंशिएट करो उनको कि प्रेजेंट में क्या लगा था और पास्ट में क्या लगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास में होते तो बेटे मैं दोबारा फिर रिपीट कर देती होती हूँ ना, पहले ऐसे करवा देती हूँ, फिर मैं दोबारा उसको जैसे मैं बोल रही हूँ आपको जल्दी आ जाएगा, ऐसे भी करवा देती होती हूँ। तो अभी वी हैव टाइम लिमिट, तो we have to complete 3 lectures after this I will do the next one, then the last one, 3 lectures. Okay, now come to the past perfect. रूल्स क्या लगते हैं? रूल्स सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैड। फॉर्म कौन सी रहेगी? थर्ड फॉर्म। अच्छा, इतना कीप इट इन माइंड, इम्परफेक्ट थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म इन परफेक्ट। द नेगेटिव हैड नॉट एंड थर्ड फॉर्म। उसमें क्या था? प्रेजेंट में हैज़ और हैव दो थे ना, इसमें क्या है? सिर्फ हैड है। देन इंटेरोगेटिव, कम टू द इंटेरोगेटिव, हैड बिफोर द सब्जेक्ट। देन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या है? द रेन हैड स्टॉप्ड, सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस। द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड, हैड द रेन स्टॉप्ड, क्वेश्चन मार्क, भूलना नहीं है। देन कम टू द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इज द लास्ट वन, ठीक है ना, पीछे भी हमने किया था, सेम सेम सेम। देन कम टू द रूल्स, देन सब्जेक्ट विद हैड बीन एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ing कॉन्टिन्यूअस है ना, ing भी लगेगा। इसमें क्या लगेगा? स्पेशल और सिंस एंड फॉर। ये मैंने पहले ही बता दिया ना, सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम बताया ना उस तरफ। तो आप कॉपी पे जब डिफ्रेंशिएट करना है अपने, लिख लो आप, एक साइड पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख लो, दूसरी साइड पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख लो, और उसको देखो कि उसमें क्या क्या चेंजेस है, दोनों में कैसे कैसे, तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनता है? हैड बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है, फिर ब्रेन लगेगा, ठीक है। सिंस एंड फॉर यूज़ करने, सिंस और फॉर मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सप्लेन अर्लियर, ठीक है, पहले ही एक्सप्लेन आपको कर दिया। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, देन शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, हैड नॉट बीन। देन हैड शी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। सो इसके साथ बेटे पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया, तो प्रेजेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, पास्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे फ्यूचर टेंस की ओर। दिस इज द थर्ड वन एंड द लास्ट वन।
लास्ट फ्यूचर टेंस के 4 सब डिवीजन आएंगे, तो इट्स द थर्ड वन, ठीक है, फ्यूचर टेंस। देन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, ठीक है। वीक में जो फ्यूचर में बात होनी उसकी बात होगी इसमें, ठीक है। नो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सेम फॉर्म्स है ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, सेम ऐसे ही आएगा जैसे हमने पहले किया है। तो रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, ये भी बहुत सिंपल है बेटे, बहुत ज़्यादा सिंपल। सब्जेक्ट विद विल एंड शेल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव कैसे बनेगा, विल नॉट, शेल नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, विल शेल बिफोर द सब्जेक्ट। देन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या आएगा, क्या लिखा है, दे द टीम विल प्ले द मैच, ठीक है। ए लिखा है ना अफर्मेटिव, द टीम विल नॉट प्ले द मैच, नेगेटिव लिखा मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, नावाचक जिसको पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में भी। विल द टीम प्ले द मैच, क्वेश्चन मार्क, ओके। देन कम टू द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कौन से रूल्स है, विल बी लगता है, बी, शेल बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बहुत सारे बच्चे ये बी छोड़ जाते हैं, छोड़ना नहीं है कुछ भी, विल बी, शेल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा, विल नॉट बी, शेल नॉट बी, फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, ओके। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, विल शेल बिफोर द सब्जेक्ट, ओके। कम टू द एग्जाम्पल, शी विल बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क, अफर्मेटिव, ए लिखा हुआ। शी विल नॉट बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क, नेगेटिव लिखा हुआ है। विल शी बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क, इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। नाउ कम टू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के थर्ड वन, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये लास्ट है हमारा, लास्ट लेकिन नॉट द लीस्ट, इसके बाद भी काम करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नो परफेक्ट अपने आप में शो करता है कि थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। रूल्स, सब्जेक्ट विल हैव, शेल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव विल, शेल, नॉट है, विल नॉट, शेल नॉट जैसे, ठीक है, नॉट लगना ही है। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विच फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल, शेल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। विल हैव, शेल हैव, थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, विल शेल बिफोर द सब्जेक्ट, विल शेल सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म, ठीक। देन एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। आपको भी असाइनमेंट्स देनी होती है बाद में काम करके। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, आई शैल हैव नॉट, हैवंट भी बोल देते हैं ना बेटा इसको। आई शैल हैव नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, शैल आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देन कम टू फ्यूचर परफेक्ट continuous tense. This is the last one. It's the rules. Subject will have been, shall have been, first form of the verb, ing and since and for. And since and for I have explained earlier. I have written here, explained earlier. Now come to the example. She will have been waiting for 2 hours. Affirmative. Then negative, she will haven't been waiting for 2 hours. Negative. Then will she have been waiting for 2 hours? Interrogative. Okay. This is the last of future. Now come to the type of questions you will get. Type of questions you will get in the paper. Now it is for your own understanding, but questions will be like this, filling the blanks आएंगे, like
you know in 10th class you get the question, correct the form or fill the right form. ये आपको लिखा होता है, करेक्ट द फॉर्म, फिल द राइट फॉर्म. तो फॉर्म आपने अपने देखना है, ये प्रेजेंट है टेंस या ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कौन सी फॉर्म लगनी है. ठीक है. और कैसे आता है क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया होता है, इन पैराग्राफ 4, 5, 6, 10 लाइन, उसमें आपने फॉर्म करेक्ट करनी है. और कैसे आएगा, यहाँ पे मेक लिखा हो, मेक सेंटेंसेस या ऐसे आता है. कैसे आता है, जैसे कोई सेंटेंस है, कोई भी एनी सेंटेंस, जैसे वो हमने फर्स्ट किया था, माई मदर वॉशेस द क्लोथ्स, है ना, वॉशेस द, ये हमने किया था. सपोज ये सेंटेंस आया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेक इट नेगेटिव, मेक इट नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. क्या बनाओ आप, नेगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ. तो इस सेंटेंस उसने दे दिया, इस सेंटेंस को आपने नेगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव भी बनाना है. तो कौन ये कर पाएगा, कौन बच्चा कर पाएगा जिसको टेंस आते हैं, जिसको ये अगर वो पहचान करवाता है, वॉशेस लगा हुआ है तो विच टेंस, सिंगुलर है मदर, वॉशेस लगा हुआ तो विच टेंस इज इट. वो अगर पता चल गया प्रेजेंट है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कौन सा प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है. तो उसके लिए उसको ये आना चाहिए, रूल्स आने चाहिए. अगर उसको रूल्स आते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है. अगर वो डिफ्रेंशिएट कर गया तो फिर वो उसको नेगेटिव बनाएगा ना, फिर उसको इंटेरोगेटिव बनाएगा. तो इसके लिए पहले रूल सभी के आप याद कर लो. या तो आप ऐसे करो, सारे जैसे ये प्रेजेंट के चारे फॉर्म्स एक ही तरह, इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो. या तो ऐसे कर लो जैसे मैंने ये वाला टाइप करवाया है, आप ऐसे कर लो. नहीं तो मैंने देखा है बच्चे बहुत जल्दी फॉलो करते हैं. कैसे करना है, एक तरफ प्रेजेंट डेफिनेट कर लिया, दूसरी तरफ पास्ट डेफिनेट कर लिया, तो आपको क्लियर होता जाएगा. फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया तो अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया. डू इट लाइक दिस and you will differentiate between the two, and you will understand. This ends our first topic. It's about tenses. Okay, now we will go for the second. Wait.